Okay, good morning, students. So, today we'll discuss about relation and function, the second chapter of NCERT class 11th mathematics. So, what is relation? Relation and function. Both the topics are widely used in mathematics, not in class 11th, but class 12th and higher classes also. So, before discuss relation, we need to just simplify or aware about some basic definitions. The first is ordered pair. So what is ordered pair? Listing two objects in a specific order. अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लूँ, लेट मी क्लेरिफाई हियर. अगर मैं कोई दो ऑब्जेक्ट ले लूँ, A and B, so this is my ordered pair. Two objects in a specific order. So this is my first ordered pair, and this one is a second ordered pair. Don't think that both are equal. दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. सेम होने का जो क्राइटेरिया होगा वो तभी होंगे जब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. तो अभी ये दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. बस ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट करना. दिस इज द फंडामेंटल. ओके, द सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, the collection of all ordered pair of elements from P and Q. And P and Q are sets. Either I can say A and B, P and Q, X and Y, whatever. It's up to you. So let me define it. Suppose we have A. I'm taking a set A is 1, 2, 3. And the second is P. X, comma, Y. So my ordered pair is defined by A cross B equals to, my Cartesian product is defined by A cross B, and taking ordered pair 1 to X, 1 to Y. 1 comma X, this is my first order pair. 1 comma Y, second. In similar way, 2 to X, 2 to Y. 2 comma X, 2 comma Y. And similar way, 3 comma X and 3 comma Y. So this is A cross B. What is the speciality of this A cross B? The first element belongs to a A, and the second element belongs to a B. Ordered pair is the first element, it belongs to a A, 1 1 2 3, and second belongs to a B. Okay, if I'm take B cross A, so it would be X into 1, as I earlier mentioned, specific order, X comma 2 and X comma 3, and Y comma 1, Y comma 2, and Y comma 3. This is B cross A. And don't think that A cross B and B cross A are equal, because I earlier mentioned that order pair are only equal if their corresponding elements are equal. तो ये दोनों तो equal है ही नहीं, because यहाँ 1 comma X है, यहाँ X comma 1 है. So first thing, A cross B does not equals to B cross A. कभी बाई चांस हो जाए वो बात अलग है, बट इस केस में इक्वल नहीं है. द फर्स्ट थिंग इज दोनों का जो ऑर्डर है स्पेसिफिक वो अलग अलग है. एंड सेकंड थिंग, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is how many? 3. And number of element in B is how much? 2. So number of element दिए cross product will be number of element in A into number of element in B, which means 6. So let's count it 1 2 3 4 5 6. In a similar way, 1 2 3 4 5 6. So this is the first rule or law based about this Cartesian product of two sets. If I take another set having elements 5,
and B having element 2. So number of total elements in their cross product will be 10. Whether I'm taking A cross B or B cross A. So this is the first rule about the Cartesian product. Okay, if number of element in A equals to 5, कुछ भी नहीं है, and number of element in B equals to 2, so number of element A cross B बहुत सिंपल है, 0 या 5. so अगर एक में भी कुछ भी नहीं है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे. दूसरी चीज इसको ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, तो इक्वलिटी के लिए अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको इक्वल कर लो, उसके बेस पे वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. Okay, the next topic is relation. What is relation? A relation is a subset of a Cartesian product. जो रिलेशन आएगा वो जो मैंने A क्रॉस B लिखा है इसी का सबसेट होगा, इससे बाहर का नहीं आएगा रिलेशन जो आएगा. लेट मी टेक एग्जांपल. ये तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज अ रूल और यू कैन से a subset of a Cartesian product. So suppose I have element A 1 2 3 and B 1 4 5 6 7 8 9. अब A क्रॉस B जो होगा, A क्रॉस B, this is number of element in B equals to 1 2 3 4 5 6 7 7. Number of element in A equals to 3. So number of element दिए, Cartesian product will be 21. अब उतने तो मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, रिलेशन यू कैन डिफाइन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और रे डायग्राम. उसको बाद में दिखाएंगे. रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज रिलेशन आर. डिफाइन फ्रॉम ए टू बी. इस ए टू बी का मतलब है कि जो आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का. अगर सिंगल सेट होता, केवल ए होता, इन दिस पर्टिकुलर केस आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. अगर एक ही सेट दिया हुआ है, अगर दो सेट दिए हुए तब तो ए क्रॉस बी का होगा, सिंगल होगा तो ए क्रॉस ए का होगा. अब रिलेशन है क्या, मैं यहाँ पे देखता हूँ. रिलेशन इज सच दैट द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इस फॉर्म में होगा, सच दैट. अब होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिलेशन एक, मैं अपने मन से ऐसे लिखता हूँ, सच दैट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एंड ए belongs to a capital A and B belongs to a capital B. अब ये एक रिलेशन है, दिस इज माय रिलेशन. इसमें रिलेशन इस फॉर्म में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएंगे, जो सेकंड एलिमेंट होगा B, इसे इमेज करते हैं, दिस इज इमेज ऑफ A. जो B होगा वो A का ट्वाइस होगा, और A बिलोंग्स टू A होगा, इस सेट से बिलोंग करेगा, एंड B बिलोंग्स टू B होगा. तो इस रूल को फॉलो करते हुए, दिस इज माई रूल, दिस इज माई रिलेशन, ये रिलेशन है, इसको फॉलो करते हुए तुम्हें ये बनाना है क्रॉस बी, और वो सेट इससे बाहर नहीं होना चाहिए. सो आर विल बी, इफ आई एम लिस्टिंग ऑर्डर पेयर, यहाँ से ले लो 1 1 का डबल 2, ये मैंने लिखा. ओके, सेकंड 2 ले लो, 2 का डबल 4, 3 ले लो, 3 का डबल 6. तो ये मैंने ले लिया. तो ये एक रिलेशन है, बट इसमें एक चीज ध्यान देना, ये एलिमेंट नहीं आएगा. ये एलिमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बी बिलोंग्स टू अ बी, ये 2 जो है यहाँ है ही नहीं. चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, चलो लिख लिया यहाँ पे, तो अब सही हो गया, दिस इज 2. अब ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये नहीं आता,
तो अब अगर कोई बच्चा इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये एलिमेंट भी आएंगे, 110% आएंगे। देखो 1 into 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 into 4 भी आएगा ही, 3 into 9 भी आएगा, 6 सॉरी। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। सो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, इनका सबसेट होगा। अच्छा बाय द वे कभी ऐसा हो सकता है कि रिलेशन कुछ आए ना मेरा, आई मीन आर इक्वल्स टू 5, तो इसे नल रिलेशन कहेंगे, नल रिलेशन, और यू कैन से वॉइड रिलेशन। और कभी ऐसा होगा कि पूरा ए क्रॉस बी रिलेशन में आ जाएगा, सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। द फर्स्ट इज नल एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये दो रिलेशन हो सकते हैं व्हेन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कंप्लीटली इक्वल हो जाए उसके, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ये नल रिलेशन होगा। इन दोनों के, ये दोनों अगर मैं एक रिलेशन के लिए लाइन ड्रॉ करूं तो ये इन दोनों रिलेशन के लिए एक्सट्रीम कंडीशन है। मैक्सिमम कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल हो सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, और मिनिमम नल रिलेशन हो सकता है, नल से बाहर नहीं जाएगा। तो इन दोनों के बेस पर इन ये जो दो रिलेशन लिखे हुए हैं इसके बीच में ही बाकी रिलेशन घूमेंगे। सो इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ये दोनों किसी भी एक रिलेशन के लिए एक्सट्रीम रिलेशन है, नल एंड यूनिवर्सल। बाकी जितने भी रिलेशन डिफाइन होंगे इनके बीच में ही होंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट रिलेशन। ओके, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। इसको ध्यान देना, ये आगे बहुत यूज में आएगा। सेकेंड एलिमेंट जो मैंने इमेज कहा था अभी, इसे कहते हैं रेंज। फर्स्ट element which belongs to a first set A called domain, and second is range sorry, and the whole set of B, and the whole set of B is called codomain. The whole set of B is called codomain. तो तुम्हारे जो नई चीजें भी सामने आई हैं वो आई हैं रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। अब ये हमेशा आते रहेंगी, ये चीजें आते रहेंगी, रेंज डोमेन कोडोमेन, डोमेन रेंज कोडोमेन। इसके बारे में फिर डिस्कस करते रहेंगे ये क्या होता है। तो फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर। थैंक यू।